children, welcome to your EVS class. Children, I'm sure you all are watching the videos which are uploaded for you, and you know that in our previous video we were doing chapter 9 of your EVS textbook. The name of the chapter is Days to Celebrate. Children, in this chapter we studied about the days that we celebrate. Children, we will continue this chapter, but before continuing, we will revise what we have done in our previous video. Children, we discussed about the days that we celebrate, like birthday celebration, wedding celebration, anniversary celebration, and above all, festivals. We celebrate festivals throughout the year. Children, there are two types of festivals celebrated in our country. One is national festival and other one is religious festival. National festivals, national festivals. Children, we discussed this in our previous video, the national festivals. Children, there are 3 national festivals that are celebrated in our country. हमारे देश में 3 national festivals celebrate किए जाते हैं. कौन कौन से? Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. Okay? Independence Day, second one is Republic Day, and Gandhi Jayanti. Children, we celebrate Independence Day on 15th of August every year. ये हम 15th अगस्त को हर साल मनाते हैं because our country got freedom on this date from Britishers. We got freedom. India became free on 15th of August. So we celebrate this day as our Independence Day. And we remember martyrs, the people who sacrificed their life for our independence. Then we talked about Republic Day. Children, Republic Day is celebrated on 26th January every year, and this day is celebrated because on this day our Constitution, the Constitution of India came into practice. Our Constitution was made in the year 1950, 26 January 1950. Children, then we talked about Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd of October, and it is birthday of our father of the nation, that is Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, who is also called Bapuji. People used to call him Bapuji, and his birthday is celebrated as Gandhi Jayanti. Children, all these 3 days are celebrated in our country as our national festivals. On Independence Day, our Prime Minister hoists national flag on a red fort and he addresses the nation. इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो रेड फोर्ट पर लाल किले पे झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं, देश की जनता को वो संबोधित करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं अपनी स्पीच से. रिपब्लिक डे के दिन दिल्ली में ही, जैसे दिल्ली के रेड फोर्ट में ये काम होता है, तो दिल्ली में ही जो परेड होती है, जो आर्म्ड फोर्स होती है, उनकी परेड होती है और राजपथ पर तीनों आर्म्ड फोर्स की परेड निकलती है. अलग अलग स्टेट्स के टैब्लोज निकलते हैं, झांकियां जिसको बोलते हैं, और वो स्टेट्स
अपने अपने स्टेट्स का कल्चरल हेरिटेज दिखाते हैं या कोई स्पेशलिटी दिखाते हैं अपने झांकियों में। इसके अलावा उस दिन डांसेस होते हैं, स्टेट्स के कल्चरल डांस होते हैं, और जो कंट्री है वो अपना आर्म फोर्स को भी शोकेस करता है, जो अपनी हमारी जो पावर है उसको भी शोकेस करता है। राजपथ पर ये परेड होती है, और इस दिन जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ही टेक्स सल्यूट, वो सलामी लेते हैं, सल्यूट लेते हैं खड़े होकर आर्म्ड फोर्सेस का। और इस दिन हम किसी दूसरे कंट्री के से गेस्ट को भी बुलाते हैं, किसी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इस तरह का लीडर को हम अपने कंट्री में एज ए गेस्ट भी बुलाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी गांधी जयंती की। गांधी जयंती के दिन क्या होता है, इस दिन भी राजघाट में, जहां पर महात्मा गांधी जी की समाधि है, वहां पर प्रेयर्स होती हैं, वहां पर मीटिंग्स की जाती है, गांधी जी की जो टीचिंग्स हैं उसके बारे में लोगों को बताया जाता है। इस तरह से हम नेशनल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। स्कूलों में सेलिब्रेट होता है, स्कूल्स में सेलिब्रेट होता है नेशनल फेस्टिवल। उस दिन कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, पैट्रियोटिक प्रोग्राम होते हैं, देशभक्ति से संबंधित जो प्रोग्राम किए जाते हैं, बच्चों को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरह से हम अपना नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। हम मतलब पूरा देश नेशनल फेस्टिवल मनाता है, बिकॉज नेशनल फेस्टिवल्स आर दोज फेस्टिवल्स which are celebrated by the entire nation. The whole country celebrates national festival. Okay. Then we talked about religious festival. We talked about religious festivals. RELIGIOUS. Religious festivals. Children, as I have told you, India is a land of festivals. It's a country of festivals. यहाँ पे डिफरेंट तरह के रिलीजन्स हैं, जो हमने अपने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि हमारी कंट्री में मेजर जो 7 रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के वो पाए जाते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स हैं तो उन रिलीजन्स से रिलेटेड फेस्टिवल्स भी हैं। मतलब हमारी कंट्री में रिलीजियस फेस्टिवल्स जो हैं बहुत तरह के हैं जो मनाए जाते हैं। और हम बात कर रहे थे दिवाली की। हमने दिवाली की बात शुरू की थी। दिवाली क्यों मनाई जाती है? ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम, भगवान राम 14 इयर्स के एग्जाइल के बाद, वनवास के बाद रावण को मारकर वापस अयोध्या लौटे थे। और क्योंकि उस दिन नो मून डे था, उस दिन बिल्कुल अमावस्या था, डार्क नाइट था, तो अयोध्या के लोगों ने उनको ऐसा ना लगे श्री राम जी को कि सब तरफ अंधेरा है, उन्होंने पूरी अयोध्या सिटी को दियों से डेकोरेट किया था। जो मिट्टी के दिए मिलते हैं उससे पूरे अयोध्या को उन्होंने सजा दिया था। पूरे रास्ते को, अयोध्या का जो पूरा रास्ता था उसको उन्होंने दियों से सजा दिया था, ताकि जब भगवान राम आए, लॉर्ड राम आए, तो उनका पूरा स्वागत हो और उन्हें कहीं भी अंधेरा न दिखे। उनके जो राजा थे राम, इसलिए। तो एक तो ये रीजन है दिवाली मनाने का। दूसरा ये माना जाता है कि उस दिन लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं, लक्ष्मी जी एंटर करती हैं, घर में आती हैं। इसीलिए दिवाली की तैयारी लोग बहुत पहले से करनी शुरू कर देते हैं, 1-2 महीने से पहले से करनी शुरू कर देते हैं। लोग अपने घरों को साफ करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, जितना भी घर का वेस्ट होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। और इस दिन लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लॉर्ड गणेश एंड गॉडेस लक्ष्मी दे बोथ आर वर्शिप्ड ऑन दिस डे। लोग उनकी पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के घर स्वीट्स बांटते हैं, एक दूसरे को मिठाई देते हैं, मिलने के लिए जाते हैं एक दूसरे के घर, और गिफ्ट में मिठाई या कुछ भी, चॉकलेट्स, आजकल तो चॉकलेट्स का जमाना आ गया है, तो लोग चॉकलेट्स देते हैं या स्वीट्स देते हैं एक दूसरे के घर जाकर। और इस दिन जिसके पास नए कपड़े नहीं है, ऑफ कोर्स साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नए कपड़े ही पहने, लेकिन परंपरा, कल्चर ऐसा है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं
और एक दूसरे के घर जाते हैं, मिठाई बांटते हैं, ठीक है। अपने घर को लाइट्स से सजाते हैं, दियों से सजाते हैं, और ये जो है आपसी जो भाईचारे का प्रतीक है, जो ब्रदरहुड का प्रतीक है। हम एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। सो दिवाली इज ऑल्सो कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने दिवाली के बारे में बात कर ली। और दिवाली के दिन क्या होता है? यस, बच्चे क्रैकर्स जलाते हैं, है ना। आप पटाखे फोड़ते हो, बड़े भी पटाखे फोड़ते हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट दैट दिस इज नॉट गुड थिंग टू बर्न क्रैकर्स। इससे क्या होता है, बहुत पोल्यूशन फैलता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है कि जिन लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, अस्थमा होता है, उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो जाती है और कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। जो बीमार लोग होते हैं, जिनको सांस की बीमारी होती है, जिन्हें अस्थमा होते हैं, ऐसे लोगों की कभी कभी डेथ भी हो जाती है ड्यू टू पोल्यूशन। इतना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है पटाखों से, ठीक है। तो पटाखे ना जलाकर आप दिए जलाइए, लाइटिंग्स कीजिए, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए, अच्छा खाइए, स्वीट्स खाइए, लेकिन पटाखे जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पटाखों से सिर्फ साउंड होता है और पोल्यूशन होता है और कुछ नहीं होता है ना। आपने बम फोड़ा, साउंड हुआ, थोड़ा सा साउंड आपको अच्छा लगा, लेकिन कितना धुआं होता है ना। तो पटाखों से पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन और एंड साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है। सिर्फ कितने लोगों के तो कान खराब हो जाते हैं, इतने तेज तेज पटाखे लोग चलाते हैं कि लोगों के सुनने का जो वो होता है वो भी उस पे भी इससे असर पड़ता है। इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए। उसको, उस पैसे को, उस मनी को आप दूसरे किसी काम में लगा लो, आप अच्छी चीजें खा लो, आप गरीब बच्चों को उस दिन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उस पैसे से वो भी खुश हो जाएंगे, उनकी भी दिवाली बन जाएगी, है ना। पटाखे किसी भी फेस्टिवल पे नहीं जलाने चाहिए, किसी भी फेस्टिवल पे नहीं जलाने चाहिए। जो पैसे आप पटाखे पे खर्च करोगे वो गरीब बच्चों पे खर्च करो, उन्हें खुश करो, उन्हें भी कुछ मिठाई दे दो, कुछ अच्छे कपड़े दे दो, ताकि उनकी भी दिवाली बन जाए, है ना। दिवाली, कोई भी फेस्टिवल का मतलब होता है हैप्पीनेस, है ना। सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है हैप्पीनेस। और अगर हम किसी फेस्टिवल को मनाएं जिससे दूसरों को नुकसान हो, तो वो हैप्पीनेस नहीं है। स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, फेस्टिवल इज स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, खुशियां बांटना। और अगर हम हवा को प्रदूषित करेंगे, हवा को पल्यूट करेंगे, उसमें प्रदूषण बढ़ाएंगे, तो वो सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए दिवाली को हंसी खुशी मनाना चाहिए, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज दशहरा। नेक्स्ट फेस्टिवल हमारा जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हमने दिवाली पे डिस्कशन किया, ठीक है। नेक्स्ट इज दशहरा। चिल्ड्रन, दशहरा को दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में, जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहां पे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। और दशहरा जो है वो 10 डेज का जो नवरात्रि होती है 9 दिन की, और 10th डे दशहरा मनाया जाता है, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। अगेन आई एम सेइंग, दो इट इज हिंदू फेस्टिवल, बट एनीबडी कैन सेलिब्रेट, एवरीबडी कैन सेलिब्रेट। सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं है, इसे कोई भी मना सकता है। दो इट इज कॉल्ड अ फेमस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है, इसको नेपाल में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको नेपाली लोग, जो नेपाल के लोग हैं, वहां पे दशहरा जो है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन नवरात्रि और 10वें दिन 10th डे दशहरा। इस दिन क्या होता है, रामलीला होती है। 9 दिन रामलीला होती है। अब रामलीला क्या होती है, आप तो भी बहुत छोटे हो, आपने शायद, आपके टाइम में तो टीवी और कार्टून वाला जमाना है, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि रामलीला क्या होती है। रामलीला में क्या होता है, जो रामायण आपने सीरियल देखा होगा, वही स्टोरीज जो है स्टेज पर जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो करते थे।
जो रामायण के एपिसोड्स हैं उसको लाइव स्टेज पर किया जाता था। कोई राम बनता था, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई सीता बनती है, कोई रावण बनता है, और जो भी रामायण की कहानियां हैं उसको स्टेज पर किया जाता था और लोग बहुत मन से उसे देखते हैं और देखते थे। ठीक है, अभी भी कहीं कहीं पे रामलीला होती है। और दशहरे के दिन फिर रावण का डमी, रावण का जो पुतला होता है उसको जलाया जाता है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है दशहरा, ये श्रीलंका और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी दशहरा मनाया जाता है। और चिल्ड्रन, जो दशहरा है वो बुराई की हार और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इट्स सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मतलब इसमें अच्छाई की जीत और बुराई की हार। अच्छाई की जीत मतलब लॉर्ड राम की विक्ट्री, और बुराई की हार मतलब रावण की हार, है ना। इस दिन मानते हैं ना कि राम और रावण के दोनों के बीच जो युद्ध था वो 10 दिन तक चला था, और 10th डे राम ने रावण को मार दिया था। तो ये इसलिए दशहरे के दिन जो रामलीला जो तो होती है, जो दशहरा का जो ग्राउंड होता है वहां पे बड़े बड़े पुतले होते हैं रावण के, और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण, इनके पुतले जलाए जाते हैं। कोई राम बनता है और वो तीर चलाता है और रावण के पुतले को जलाया जाता है। मतलब ये शो किया जाता है कि बुराई की हार हो गई और अच्छाई जीत गई। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि जो शक्ति है माँ दुर्गा, उन्होंने महिषासुर को मारा था। ये दशहरा का ये भी प्रतीक है कि जो माँ दुर्गा हैं, जिन्हें शक्ति के नाम से जाना जाता है, उन्होंने एक राक्षस था महिषासुर, उसको उन्होंने मारा था। बच्चों, आपने शायद पिक्चर्स भी देखी होगी जिसमें दुर्गा देवी ऐसे त्रिशूल लेके एक ऐसे राक्षस को मार रही होती है ना, वो महिषासुर है। वेस्ट बंगाल में इसको दुर्गा पूजा कहा जाता है, और बड़े बड़े ह्यूज पंडाल लगते हैं, ब्यूटीफुल पंडाल्स लगते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं उन पंडाल को देखने के लिए, दुर्गा पंडाल को देखने के लिए। उन पंडाल के अंदर सुंदर सुंदर भव्य मूर्तियां होती हैं माँ दुर्गा की, जिसमें कि वो महिषासुर को मार रही हैं। तो ये जो वेस्ट बंगाल, मतलब जो बंगाली लोग हैं, उनका ये मेन फेस्टिवल माना जाता है। ठीक है, और नॉर्थ इंडिया में जैसे मैंने बताया रामलीला होती है, आउटडोर जो ड्रामा होते हैं, और बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है। और जैसा मैंने बताया कि रावण की जो एफिकीज होती है उसको इस दिन जलाया जाता है, हर साल जलाया जाता है। तो ये हुई दशहरा की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे एक और फेस्टिवल की, दिवाली और दशहरा। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट फेस्टिवल है ईद उल फित्र। नेक्स्ट फेस्टिवल क्या है? ईद उल ओके, नाउ ईद या ईद उल फित्र, इसको ईद भी बोलते हैं या ईद उल फित्र भी बोलते हैं। ये है मुस्लिम्स का एक मेजर फेस्टिवल, एक मेन फेस्टिवल है मुस्लिम्स का। अगेन बच्चों, कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जिसे पूरे इंडियंस नहीं मना सकते। आप चाहो तो ये फेस्टिवल भी मना सकते हो। दो इट इज कॉल्ड अ मुस्लिम फेस्टिवल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुस्लिम फेस्टिवल। ईद जो है वो मुस्लिम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। ठीक है, और ये कब आता है? ये रमजान का जो महीना होता है, रमजान जिसको बोलते हैं, रमजान मंथ के जब रमजान का मंथ खत्म होता है तो ये फेस्टिवल आता है। मतलब एक महीना, 1 मंथ तक जो मुस्लिम लोग हैं वो फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग मतलब व्रत रखना। 1 मंथ की फास्टिंग करते हैं, 1 महीना व्रत रखते हैं, और 1 महीने के व्रत के बाद रमजान के जो महीना है उसका जब कंप्लीट होता है उसके बाद आती है ईद। रमजान कंप्लीट होता है, उसके बाद आती है
ईद, जिसको इंग्लिश में रमदान भी बोलते हैं या रमजान बोलते हैं। रमजान के जो मंथ है उसको मुस्लिम लोग बहुत होली मंथ मानते हैं, बहुत पवित्र मंथ मानते हैं। और पूरे रमजान में मुस्लिम लोग फास्टिंग करते हैं। वो एक टाइम सनराइज से पहले खाना खा लेते हैं, ऐसा कुछ उनका होता है। और फिर ये पूरा 1 महीना तक चलता है। और उसके बाद जब ये मंथ ओवर होता है, जिस दिन ओवर होता है उसके नेक्स्ट डे ईद मनाई जाती है। मून को देखकर, चांद को देखकर ईद डिसाइड होती है। और ये माना जाता है कि ये जो होली मंथ है, रमजान का महीना, इसका एंड होता है ईद से। इस महीने का एंड होता है ईद से, ठीक है। और इस दिन क्या होता है, ईद के दिन मुस्लिम लोग भी इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। जो ईद की तैयारी है उसकी वो बहुत पहले से शुरू करते हैं। जब रमजान का मंथ चल रहा होता है उसी टाइम से शुरू कर देते हैं। नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पुअर रिच, सब अपने अपने स्टैंडर्ड, अपने अपने स्टेटस के हिसाब से नए कपड़े खरीदते हैं। और ईद के दिन जो घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं वो मस्जिद जाते हैं नमाज के लिए। जो मैंने बताया था आपको, मुस्लिम लोग के प्रेयर्स को कहा जाता है नमाज। मुस्लिम लोग जो प्रेयर करते हैं उसे क्या कहा जाता है, नमाज। तो इस दिन मुस्लिम लोग जो मेल हैं, जो पुरुष लोग हैं, घर के जो मेल मेंबर्स हैं, वो मस्जिद में जाकर नमाज ऑफर करते हैं, प्रेयर करते हैं। और फिर उस दिन की जो स्पेशल प्रेयर होती है उसके बाद वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं, एक दूसरे को ईद की बधाई देते हैं। दे सेलिब्रेट ईद बाय सेइंग ईच अदर ईद मुबारक बोलते हैं। और इस दिन एक स्पेशल डिश इनके घर में बनती है जिसे कहते हैं सेवैयां। आपने जरूर खाई होगी मीठी सेवई। और इस दिन हर मुस्लिम के घर में मीठी सेवई जरूर बनती है। सेवैयां जो है ये स्पेशल डिश है जो इस दिन बनती है। सारे फैमिलीज, सारे फ्रेंड मिलकर खाते हैं और एक दूसरे के घर देते भी हैं। अकेले नहीं खाते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको वो स्वीट देते भी हैं, सेवई देते भी हैं। और इस दिन बच्चों को भी गिफ्ट मिलता है जिसे ये लोग बोलते हैं ईदी। ईदी मिलती है बच्चों को। जो बड़े लोग हैं वो अपने से छोटों को, अपने जो घर में छोटे बच्चे हैं उनको जो गिफ्ट देते हैं उसे कहते हैं ईदी। तो बच्चों को ईद का इंतजार बहुत रहता है क्योंकि इस दिन उन्हें ईदी मिलती है। और सेलिब्रेशन तो है ही, हैप्पीनेस तो है ही, साथ में ईदी भी मिल जाती है। तो हमने बात की कौन से फेस्टिवल की, ईद उल फित्र की बात की। ईद उल फित्र जो है वो मुस्लिम फेस्टिवल है, बट इट्स इंडियन फेस्टिवल, वी ऑल कैन सेलिब्रेट। नाउ वी विल टॉक अबाउट गुरु पर्व। वी विल टॉक अबाउट गुरु पर्व। Guru Parv. Children, Guru Parv is also called Guru Nanak Jayanti. इसको गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है। मतलब इस दिन गुरु नानक देव जी का बर्थडे माना जाता है। गुरु नानक कौन थे? गुरु नानक जी ने सिख धर्म को स्टार्ट किया था। गुरु नानक देव जी वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। जो सिख धर्म है उसको गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने बनाया था। ही वॉज द फर्स्ट सिख गुरु। गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। ठीक है, सबसे पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। और मैंने आपको पूरे 10 सिख गुरुओं के नाम भी आपको बताए थे अपने पिछले वीडियो में, है ना। तो आप पिछला वीडियो देखना, आपको पता चल जाएगा वो 10 गुरु कौन कौन से हैं। लेकिन सबसे पहले गुरु कौन है? गुरु नानक देव जी, जिन्होंने की सिख धर्म को स्टार्ट किया था, जिन्होंने सिख रिलीजन को स्टार्ट किया। सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन and his birthday is celebrated as गुरु पर्व। अच्छा, ये जो है फेस्टिवल, ये सिख लोगों का बिगेस्ट
फेस्टिवल है। जो सिख लोग होते हैं, सिख रिलीजन के जो लोग होते हैं, उनका ये सबसे बिगेस्ट फेस्टिवल होता है गुरु पर्व। ठीक है, अब क्योंकि ये बर्थडे है गुरु नानक देव जी का, तो ये जो जितने भी सिख लोग हैं ये इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं। गुरुद्वारा आपको बताया था प्लेस ऑफ वर्शिप है, सिख लोगों का प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? गुरुद्वारा है। तो इस दिन लोग गुरुद्वारे में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और ये जो फेस्टिवल है ये कार्तिक मंथ में आता है। जो हिंदी में आप मंथ जो होते हैं, मंथ के नाम है, उसमें एक मंथ है कार्तिक। ठीक है, इस दिन फुल मून डे होता है, कार्तिक पूर्णिमा बोलते हैं। कार्तिक पूर्णिमा मतलब कार्तिक मंथ के फुल मून डे को गुरु पर्व कब मनाया जाता है? गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कार्तिक एक मंथ है, हिंदी मंथ है। जैसे हम इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च पढ़ते हैं, वैसे हिंदी में भी मंथ के नेम होते हैं। उनमें से एक मंथ होता है कार्तिक, जो अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर नवंबर के पास होता है। तो कार्तिक मंथ के फुल मून डे को, पूर्णिमा को, पूर्णमासी को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और जैसा मैंने बोला, जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। और इस दिन गुरुद्वारे में एक बहुत स्पेशल चीज होती है। आप गेस कर सकते हैं क्या होता होगा? प्रेयर तो होती ही है, और क्या होता है? आप में से कोई अगर गुरुद्वारा गया होगा तो उसे जरूर पता होगा। जी हाँ, इस दिन होता है लंगर। लंगर मतलब लोगों को फ्री में खाना खिलाना। इस दिन सारे गुरुद्वारों में लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। लंगर का मतलब होता है जितने भी लोग हैं उन सबको खाना खिलाना, वो भी फ्री में, बिना पैसा लिए। उसे गुरु नानक देव जी का प्रसाद माना जाता है। जो खाना खिलाया जाता है उसे गुरु नानक देव जी का प्रसाद माना जाता है। और जितने भी लोग हैं, कोई भी जाकर खाना खा सकते हैं। कोई भी मतलब कोई भी, वो किसी को मना नहीं करते, बिना पैसे के फ्री में खाना खिलाते हैं। लंगर चलाना इसको बोलते हैं। तो इस दिन लंगर भी किया जाता है, कीर्तन गाया जाता है। जो गुरुद्वारे में जो प्रेयर्स होती हैं, जो उस वक्त जो सॉन्ग गाया जाता है उसको बोलते हैं कीर्तन। तो गुरुद्वारों में कीर्तन गाया जाता है और लंगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। लंगर मैंने बताया था, ये भगवान का प्रसाद होता है, ये स्पेशल खाना होता है जिसे फ्री ऑफ कॉस्ट सबको खिलाया जाता है। जो भी जाएगा गुरुद्वारा उसको ये खाना खिलाया जाएगा एज ए प्रसाद ऑफ गुरु नानक देव। ये स्पेशल मील होता है। ठीक है, और लोग प्रेयर जब गुरुद्वारा में जाते हैं तो वो कीर्तन गाते हैं, दे सिंग कीर्तन। और ये बहुत ही ग्रैंड लेवल पर मनाया जाता है। इसको जो सिख लोग हैं इसकी तैयारी बहुत अच्छी करते हैं। सिख लोग तो वैसे भी अपनी सेवा के लिए जाने जाते हैं। आपने अगर किसी भी सिख पर्सन को आप जानते होंगे तो दे आर वेरी हेल्पफुल इन नेचर, अदरवाइज भी वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, जितने भी सिख लोग होते हैं। तो और ये जो लंगर चलाने की जो परंपरा है, इसका बेसिक जो मोटिव होता है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई गरीब भूखा ना रहे। जो गोल्डन टेम्पल है वहां तो हर रोज लंगर होता है, हर रोज फ्री में खाना खिलाया जाता है लोगों को। कोई भी गरीब जाके खाना खा सकता है, गरीब अमीर कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन का व्यक्ति वहां जाकर खाना खा सकता है बिना पैसे के। ये लोग सेवा के लिए करते हैं, टू सर्व, दे सर्व ह्यूमैनिटी बाय फीडिंग देम, मतलब कोई भी भूखा न रहे। ठीक है, तो हमने बात की गुरु पर्व की बात की। ठीक है, तो बच्चों आज हमने फेस्टिवल्स कौन कौन से डिस्कस किए। आज हमने डिस्कस किया दिवाली, दशहरा, ईद उल फित्र और गुरु पर्व। ये हमने 4 फेस्टिवल को आज डिस्कस किया। कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सारा हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी।
तो जो बाकी के फेस्टिवल्स हैं वो हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन फेस्टिवल की कोई कमी नहीं है, आपके बुक में जितने फेस्टिवल्स दी हैं, इस चैप्टर में जितने फेस्टिवल्स दी हैं वो तो बहुत कम है। वी कैन डिस्कस मेनी फेस्टिवल्स, कई फेस्टिवल्स हैं जिसपे हम डिस्कशन कर सकते हैं। इंडिया में तो फेस्टिवल्स की कमी ही नहीं है, तो हम बाकी के जो फेस्टिवल्स हैं वो हम कब करेंगे, अपने अगले वीडियो में इसको करेंगे। तब तक मैंने जितना भी आपको समझाया है, जितना भी बताया है फेस्टिवल के बारे में, उससे आप अपने चैप्टर में पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो हम ऑनलाइन क्लास में उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।